السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ منظر اب تمام ساتھیوں کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں اپنے ہی یوٹیوب چینل ایم ایس آن لائن کلاسز پر۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ہم لوگ جو ہے کہکشاں اردو کلاس 12 کا جو ہے چیپٹر 8 کا جو ہے مکمل تشریح کر چکے تھے، یعنی فل ایکسپلانیشن کر چکے تھے۔ تو آج ہم لوگ پڑھنے والے اسی چیپٹر کا جو ہے آبجیکٹو آنسر ٹائپ کوشچن پڑھیں گے، جسے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں معروضی سوالات، ہے نا۔ چلیے پھر ہم لوگ شروع کرتے ہیں ویڈیوز کو۔ چلیے، یہ آپ کا جو سب سے پہلا جو آپ کا سوال ہے کہ جیلانی بانو کی وفات کب ہوئی، ہے نا۔ جیلانی بانو کی جو ہے وفات کب ہوئی، ہے نا۔ تو آپ ہے نا پڑھ چکے تھے کہ 2005 میں، آپ کا بی میں ہے 2008، اور یہ آپ کا سی میں ہے 2006، اور یہ آپ کا جو ہے 4 میں ہے، ڈی میں ہے، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو جیلانی بانو کی جو وفات جو ہے ہم لوگ نہیں پڑھے تھے، کیونکہ ان کو جو ہے کتاب میں، اس کا بک میں دیا ہوا نہیں ہے ان کو وفات کب ہوئی تھی۔ صرف ہم لوگ پڑھے تھے کہ ان کی پیدائش جو ہے نا حیدرآباد میں ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ تو 1936 میں ہوئی تھی۔ اور اس کا جو انتقال کب ہوا تھا یہ کتاب میں، آپ کا بک میں بھی نہیں ہے، تو ہم اس کو نہیں پڑھائے تھے۔ تو ان میں سے آپ کا کوئی نہیں، آپ کا آپشن ڈی جو ہے آپ کا صحیح اور رائٹ آنسر ہوگا، ان میں سے کوئی نہیں، ہے نا۔ چلیے، آپ کا سوال دوسرا کہہ رہا ہے نا۔ سوال دوسرا کہہ رہا ہے، چلیے آئیے، آپ کا سوال دوسرا کہہ رہا ہے کہ امو کی، ہے نا، امو کی جو ہے خادمہ کا کیا نام تھا نا۔ امو کی خادمہ کا کیا نام تھا؟ آئیے، آپ کا آپشن اے میں ہے خواجہ امیرن، یا آپ کا بی میں ہے خواجہ بی، یا آپ کا سی میں ہے امراؤ، اور آپ کا ڈی میں ہے کیا، نسیم، ہے نا۔ تو ہم کیا پڑھ چکے تھے؟ امو کی جو خادمہ کا نام کیا تھا، نوکرانی کا نام کیا تھا؟ تو ہم لوگ پڑھ چکے تھے خواجہ بی جو ہے آپ کا آپشن بی صحیح اور رائٹ آنسر ہے، خواجہ بی، ہے نا۔ چلیے، آپ کا سوال تیسرا کہہ رہا ہے کہ جیلانی بانو جو ہے نا، جیلانی بانو کی جو ہے نا تعلیم کہاں تک ہوئی تھی؟ کیا جیلانی بانو کی جو تعلیم کہاں تک ہوئی تھی؟ آئی آپ کا آپشن اے میں ہے بی اے، اور آپ کا جو ہے بی میں ہے ایم اے، اور آپ کا سی میں ہے پی ایچ ڈی، اور آپ کا جو ہے ڈی میں ہے انٹرمیڈیٹ۔ تو ہم لوگ پڑھ چکے تھے جیلانی بانو کی جو ہے تعلیم کہاں تک ہوئی تھی، تو ایم اے تک ہوئی تھی، جو آپ کا آپشن بی جو ہے نا رائٹ اور صحیح آنسر ہے۔ اور ہم لوگ یہ بھی پڑھ چکے تھے اس کا جو ہے زیادہ تر امتحانات جو ہے یہ پرائیویٹ سے پاس کیے تھے، ہے نا۔ کہاں سے پاس کیے تھے؟ پرائیویٹ سے ہی پاس کیے تھے، اور یہ کیا تھے؟ یہ ایم اے، جس کی تعلیم جو ہے ایم اے تک ہوئی تھی، ہے نا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، آپ کا سوال آپ کا چوتھا کہہ رہا ہے کہ جیلانی بانو کے جو ہے کس افسانہ پر جو ہے مونوگراف لکھا تھا؟ کیا جیلانی بانو کے ہیں، بانو نے کس افسانہ پر جو ہے، افسانہ نگار پر جو ہے مونوگراف لکھا تھا؟ آئیے، آپ کا آپشن اے میں ہے کرشن چندر، یا آپ کا بی میں ہے پریم چند، اور آپ کا جو ہے سی میں ہے کیا، بیدی، اور آپ کا جو ہے ڈی میں ہے آپ کا سہیل عظیم آبادی۔ کون؟ سہیل عظیم آبادی، یا آپ کا ڈی میں ہے۔ تو ہم لوگ کیا پڑھ چکے تھے؟ جیلانی بانو نے ہے نا کس افسانہ نگار پر جو ہے مونوگراف لکھے تھے؟ تو آپ کا آپشن اے ہے جو آپ کا صحیح اور رائٹ آنسر ہے، کیا کرشن چندر پر جو ہے مونوگراف لکھے تھے، ہے نا۔ چلیے، آپ کا سوال پانچواں کہہ رہا ہے کہ جیلانی بانو، کیا جیلانی جو ہے بانو کے شوہر کا کیا نام ہے نا۔ جیلانی بانو کے شوہر کا جو ہے کیا نام ہے؟ آئیے، آپ کا آپشن اے میں ہے معظم شاہ، یا آپ کا بی میں ہے انور معظم، یا آپ کا جو ہے تین میں ہے انور عظیم، یا آپ کا جو ہے ڈی میں ہے انور علی، ہے نا۔ تو کیا جیلانی بانو کے جو ہے شوہر کا کیا نام تھا؟ ہم پڑھ چکے تھے انور معظم، جو ایک وکیل تھے۔ کیا تھے؟ یہ ایک وکیل تھے، اور جو ہے ادیب، یہ جو ہے اور ادیب بھی تھے، مشہور ادیب بھی تھے۔ کون؟ یہ انور معظم صاحب، ہے نا۔ چلیے، آپ کا آپشن بی جو ہے آپ کا صحیح اور رائٹ آنسر ہے۔ چلیے، آپ کا سوال آپ کا چھٹا کہہ رہا ہے کہ امو، کیا امو سے جو ہے جنازے میں ہے نا کاندھے دینے کا وعدہ جو ہے کس نے کیا تھا؟ کیا امو سے جنازے میں جو ہے کاندھا دینے کا وعدہ جو ہے کس نے کیا تھا؟ آئیے، آپ کا آپشن اے میں ہے بیٹوں نے، آپ کا بی میں ہے شوہر نے، یا آپ کا تین میں ہے کیا، ہے نا پوتوں نے، ہے نا اس کے پوتوں نے، یا پھر آپ کا ہے ڈی میں ہے آپ کا کس نے نہیں، ہے نا کسی نے نہیں۔ تو آئیے، آپ کا آپشن کیا ہے؟
अम्मू से जो है, अम्मू से है ना जनाजे में कांधे देने का वादा किसने किया था? बेटों ने किया था। जो आपका ऑप्शन ए जो है आपका सही और राइट आंसर है। चलिए आपका सवाल आपका सातवां कह रहा है कि अम्मू के जो है शोहर कौन थे? क्या अम्मू के जो है शोहर कौन थे? आइए आपका ऑप्शन ए में है डॉक्टर थे, या फिर वकील, या फिर है ना सियासतदान थे, या फिर तबीब थे। आइए अम्मू के जो शोहर कौन थे? ये थे वकील, जिनका नाम था अनवर मुअज्जम। जो आपका ऑप्शन बी सही और राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल आठवां कह रहा है कि इनमें से है ना, इनमें से कौन जिलानी जो है बानों का अफसानवी मजमुआ नहीं है? क्या जिलानी बानों का जो है अफसानवी मजमुआ नहीं है? अफसानवी मजमुआ क्या होता है? यानी एक अफसानी मजमुए के अंदर जो है ढेर सारा अफसाना होना, यानी कई सारा अफसाना जो है ऐड होना, उसे अफसानवी मजमुआ कहते हैं। और अफसाना बोले तो यानी एक अफसाना होना, है ना। चलिए, रोशनी के मीनार ये तो आपका जिलानी बानों का ही है। नरवान ये भी जिलानी बानों का है। आंख मचोली ये जिलानी बानों का नहीं है। तो रात के मुसाफिर ये भी जिलानी बानों का है। तो सवाल क्या कह रहा है, इनमें से कौन जिलानी बानों का जो है अफसानी मजमुआ नहीं है? नहीं है तो आपका जो है नहीं है कौन सा? आपका आंख मचोली जो है ये नहीं है जिलानी बानों का। तो आपका ऑप्शन सी सही और राइट आंसर होगा। चलिए आपका सवाल नौवां कह रहा है कि जिलानी बानों का जो ताल्लुक यानी संबंध किस शहर से था? क्या जिलानी बानों का ताल्लुक जो है किस शहर से था? आइए अहमदाबाद, या फिर बी में है हैदराबाद, या आपका तीन में है सी में है जहान आबाद, या आपका डी में है फरख आबाद, है ना। जिलानी बानों का जो ताल्लुक किस शहर से था? आइए हम पढ़ चुके थे कि हैदराबाद से था, जो 1936 में इसका पैदाइश हुई थी, है ना। जो आपका ऑप्शन बी सही और राइट आंसर है। चलिए आपका सवाल 10वां कह रहा है कि प्रोमिस अफसाना जो है ना, प्रोमिस जो है, प्रोमिस किसका अफसाना है? क्या प्रोमिस जो है किसका अफसाना है? आइए आपका ऑप्शन ए में जिलानी बानो, या आपका बी में है असमत चुगताई, या आपका सी में है शकील अख्तर, या आपका बी में है शफिया जावेद, है ना। तो प्रोमिस जो है किसका अफसाना है? आइए हम पढ़ चुके थे प्रोमिस का जो मुसन्निफ है, लेखक, राइटर है, तो जिलानी बानो ही है। तो प्रोमिस जो है अफसाना जो आपका ऑप्शन ए जो है आपका सही और राइट आंसर है, जिलानी बानो का लिखा हुआ ये प्रोमिस अफसाना, है ना। चलिए आपका सवाल 11 कह रहा है कि अफसाना जो है, अफसाना है ना, प्रोमिस का मरकजी किरदार कौन है ना। प्रोमिस अफसाना का जो मरकजी किरदार कौन है, मेन डायरेक्टर कौन थे इसमें? आइए आपका ऑप्शन ए में है अम्मू, या आपका बी में है ख्वाजा बी, या आपका सी में है आपका जमशेद, या आपका डी में है हमीद। देखिए चारों जो है ना, चारों जो है इस अफसाने का जो है किरदार है। बट क्या पूछा है? मरकजी किरदार, यानी सबसे जो अहम किरदार थे, मेन कैरेक्टर थे। तो अम्मू थे, कौन थे? अम्मू थे। या आपका ऑप्शन ए जो आपका सही और राइट आंसर है। ख्वाजा भी थी, है ना, जमशेद भी थे, हमीद भी थे, है ना, थे। लेकिन इसमें क्या पूछा है, मरकजी किरदार कौन थे? तो अम्मू जो है सबसे मेन किरदार था, अहम किरदार था, है ना। चलिए आपका सवाल 12वां का है कि प्रॉमिस जो है क्या है ना। प्रॉमिस जो है इसका विधा क्या है, यानी प्रॉमिस क्या है? आइए देखते हैं। या आपका नॉवेल है, या फिर आपका अफसाना है, या फिर आपका सी में है ड्रामा, या आपका डी में है मसनवी। तो प्रॉमिस क्या है? तो हम पढ़ चुके थे, प्रॉमिस एक अफसाना है जो जिलानी बानो का लिखा हुआ है ना। चलिए आपका सवाल आपका 13 कह रहा है कि अफसाना प्रॉमिस है ना, अफसाना है ना, प्रॉमिस में कितने भाइयों का तज़किरा हुआ है, बातचीत हुआ है ना। अफसाना प्रॉमिस में जो है कितने भाइयों का तज़किरा हुआ है? आइए 4 भाइयों का, या फिर 3, या आपका सी में है 2, और आपका डी में है 1। तो हम क्या पढ़ चुके थे, अफसाना प्रॉमिस में जो है कितने भाइयों का तज़किरा हुआ था? तो 4 ही भाइयों का तज़किरा हुआ था, जिनमें से आपका पहला जो भाई था कौन था? खुर्शीद था, फिर रशीद था, फिर जमशेद था, फिर हमीद था सबसे छोटा। यानी 4 भाई का तज़किरा हुआ था, जो आपका ऑप्शन ए में है सही और राइट आंसर। चलिए आपका सवाल 14 कह रहा है कि ईवान गजल का जो ताल्लुक है ना किस सिन्फ से है ना। ईवान गजल का जो है ताल्लुक, संबंध किस सिन्फ से है? ईवान गजल क्या है? आइए, या आपका नॉवेल है, या फिर अफसाना है, या आपका दास्तान है, या आपका डी में है इंशाइयाँ। तो हम पढ़ चुके थे ईवान गजल जो है एक नॉवेल है, जो लंबी कहानी इसमें है ना, तवील कहानी जो है इसमें बयान की जाती है, उसे नॉवेल कहते हैं। तो जो है जिलानी बानो का जो है ईवान गजल, ये जिलानी बानो का ही नॉवेल है। और एक नॉवेल थे जिनका नाम था बारिश संग, क्या
बारिश शंग इसका भी नावल था। ने दो नावल लिखे थे, ईवान गजल और बारिश शंग। ये आपका नावल है जो आपका ऑप्शन ए में है, ए सही और राइट आंसर। तो किसका लिखा हुआ है तो आपको बताना है, जिलानी बानो का। और दूसरा जो इसका नावल है तो क्या थे बारिश शंग थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल 15 कह रहा है, ईवान गजल का जो है, ईवान गजल किसका नावल है। देखिए पूछ लिया, ईवान गजल जो है किसका नावल है। आइए, कुर्रतुल आइन हैदर, या फिर आपका बी में है जिलानी बानो, और आपका सी में है असमत चुगताई, या फिर आपका डी में है शकील अख्तर। तो ईवान गजल की जो है किसका अफसाना है, इसका अफसाना है ये आपका जो ऑप्शन बी जो है आपका सही और राइट आंसर है, जिलानी बानो का अफसाना है। और दूसरा अफसाना इसका है क्या, बारिश शंग भी इसका अफसाना है। आइए आपका सवाल 16 कह रहा है कि जिलानी बानो की जो है पैदाइश जो है कहाँ हुई थी, है ना। जिलानी बानो की पैदाइश जो है कहाँ हुई थी। आइए आपका ऑप्शन ए में है बदायूं, या आपका बी में है मेरठ, या आपका सी में है लखनऊ, या आपका डी में है सहारनपुर। तो हम क्या पढ़ चुके थे, जिलानी बानो की जो है पैदाइश कहाँ हुई थी, तो बदायूं में हुई थी, 1936 ईस्वी में हुई थी, है ना। चलिए आपका ऑप्शन ए सही और राइट आंसर है। चलिए आपका सवाल 17 कह रहा है कि जिलानी बानो के जो है वालिद का क्या नाम था। आइए आपका ऑप्शन ए में अल्लामा हैरत बदायूनी, या आपका बी में है अल्लामा हैरत बदायूनी, या आपका है अल्लामा रिफात बदायूनी, या फिर आपका अल्लामा फरहतुल्लाह बदायूनी। तो हम क्या पढ़ चुके थे, जिलानी बानो के जो है वालिद का नाम क्या था, तो अल्लामा जो है हैरत, क्या अल्लामा हैरत बदायूनी था, जो आपका ऑप्शन ए बी जो है आपका सही और राइट आंसर है। चलिए आपका सवाल 18 कह रहा है कि नावल, देखिए नावल बारिश शंग, देखिए ये भी नावल पूछ लिया, दो नावल था इसका। नावल बारिश शंग जो है कि मुसन्निफ कौन है, राइटर लेखक कौन है। आइए आपका ऑप्शन ए में है साजिदा जैदी, या आपका बी में है सलाम बिन रज्जाक, या आपका सी में है असमत चुगताई, या आपका डी में है जिलानी बानो, है ना। तो क्या है, नावल जो है बारिश शंग जो है इसके मुसन्निफ कौन है, तो जिलानी बानो इसका मुसन्निफ है, जो आपका ऑप्शन डी सही और राइट आंसर है। और इसका दूसरा जो पहला उसका जो नावल था क्या था, ईवान गजल था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल 19 कह रहा है कि इनमें से, है ना, इनमें से जिलानी बानो जो है, इनमें से जिलानी बानो के जो है अफसानवी का मजमुआ कौन है ना। आइए, इनमें से जिलानी बानो के जो अफसानवी का मजमुआ कौन है। आंख मछली ये तो नहीं है, दाना बादाम ये भी नहीं है, आपका सी में है रोशनी के मीनार ये तो है, ये रोशनी की रफ्तार ये नहीं है। तो क्या पढ़े थे, रोशनी के मीनार जो है आपका, है ना, ये जिलानी बानो के जो अफसानवी मजमुए का नाम है। रात के मुसाफिर ये भी इसका अफसानी मजमुआ है। आइए, ये आपका ऑप्शन सी जो है सही और राइट आंसर है। चलिए आपका सवाल 20 कह रहा है कि जिलानी बानो की जो है पैदाइश कब हुई थी, कब हुई थी। आइए, 1935, 1936, या आपका सी में है 1937, या आपका डी में है 1938। तो जिलानी बानो की जो पैदाइश कब हुई थी, कहाँ हुई थी, तो बोलिएगा 1936 में जो हुई थी, तो कहाँ हुई थी, है ना, बदायूं में हुई थी, जो हैदराबाद में पड़ता है ना। आगे देखते हैं। आपका सवाल मुख्तसर था ना, यह आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, मारूजी सवालात। अब हम लोग देखेंगे मुख्तसर सवालात और जवाबात, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना। चलिए आइए, आपका जो आपका सवाल पहला जो आपका सवाल कह रहा है कि जिलानी बानो के जो है दो नावलों के नाम बताए। देखिए इसके दो ही नावल थे, तो दोनों का नाम पूछ लिया है। ये जवाब है आपका कि ईवान गजल, ये आपका पहला है। दूसरा जो उसका है बारिशंग, ये जिलानी बानो के जो है दो नावलों के नाम है। आइए, है ना। आपका सवाल दूसरा कह रहा है कि प्रॉमिस अफसाने के जो है दो किरदारों के नाम बताइए, है ना। वैसे तो चार किरदार थे, चार पाँच छह किरदार थे, एक अम्मू थे, चार बेटे थे, एक उसकी खादिमा थी ख्वाजा भी, क्या कुल मिला के जो है उसका कितना हुआ, क्या हुआ, छह हुआ पूरा ना। तो क्या बोला है, प्रॉमिस अफसाने के दो ही किरदारों के नाम बताने वाला है। तो आइए देखते हैं। आपका जवाब है कि हमीद और जमशेद। अगर आपको पूछे कि प्रॉमिस अफसाने के जो है, अफसाने के जो है कुल किरदारों के नाम बताइए, तो आपको बताना है सबसे पहले जो आपका मेन जो करेक्टर है अम्मू थे, उसके बाद कौन थे, इसका खुर्शीद था, फिर रशीद था, फिर जमशेद था, फिर हमीद था, और आखिर में जो है ख्वाजा भी, जो इनकी नौकरानी थी, दाई थी। ये पूरे जो है इनके कुल छह जो है किरदार थे इनके इस अफसाने में जो है ना, किरदार को निभाए थे, है ना, इस रोल को जो है निभाए थे इस अफसाने में, है ना। तो क्या बोला है, दो ही किरदारों के नाम बताने बोला है, तो हम बता दिए कि हमीद और जमशेद, है ना। चलिए आपका सवाल तीसरा कह रहा है ख्वाजा भी कौन थी। देखिए ख्वाजा भी कौन थी।
آئیے آپ کا جواب ہے خواجہ بی، جو امو کی جو ہے ذاتی خادمہ تھی. کیا تھی؟ امو کی خادمہ تھی یا پھر نوکرانی تھی. آئیے آپ کا سوال آپ کا چوتھا کہہ رہا ہے کہ سوال ہے نا کہ کیا کرینڈم نے اپنے چاروں بیٹے کے ساتھ زندگی ہے نا انجوائے کرنے کا کوئی پرومس کیوں نہیں لیا، ہے نا، کوئی پرومس کیوں نہیں لیا؟ یہ بات کس نے کہی ہے؟ کیا کرینڈم نے اپنے چاروں بیٹوں کے ساتھ زندگی انجوائے کرنے کا کوئی پرومس کیوں نہیں لیا؟ یہ بات کس نے کہی تھی؟ آئیے آپ کا جواب ہے کہ جواب کیا ہے؟ بیبی نے کہی تھی. کس نے کہی تھی؟ یہ بیبی نے یہ بات کہی تھی کہ کرینڈم نے اپنے چاروں بیٹوں کے ساتھ زندگی انجوائے کرانے کا پرومس کیوں نہیں لیا؟ یہ بات کس نے کہی تھی؟ تو بولیے گا بیبی نے کہی تھی. آئیے آپ کا سوال پانچواں کہہ رہا ہے کہ امو نے جو ہے اپنے بیٹوں سے کیا پرومس لیا تھا، ہے نا، کیا پرومس لیا تھا، کیا وعدہ کیا تھا؟ آئیے آپ کا جواب ہے کہ موت کے بعد جو ہے کندھا دینے کا پرومس کیا تھا، وعدہ کیا تھا. آئیے آپ کا سوال چھٹا کہہ رہا ہے افسانہ پرومس کے جو ہے خالق کون ہے، ان کا نام بتائیے، یعنی سے مصنف کون ہے؟ آئیے جواب آپ کا افسانہ جو ہے پرومس کا جو ہے خالق کون ہے؟ جیلانی بانو ہے. یعنی اس کا مصنف یعنی لکھنے والا رائٹر کو ہی خالق بولتے ہیں، تو ان کا جیلانی بانو ہے نا. چلیے آپ کا سوال آپ کا ساتواں کہہ رہا ہے کہ جیلانی بانو ہے نا، کیا جیلانی بانو کا جو ہے کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. آپ کا جواب ہے جیلانی بانو کا جو ہے افسانہ پرومس جو ہے ہمارے نصاب میں کیا ہے؟ شامل ہے نا. پرومس افسانہ جو ہے ہمارے نصاب میں جو ہے شامل ہے. آئیے آپ کا سوال آٹھواں کہہ رہا ہے کہ امو نے جو ہے اپنے بیٹے سے کیا پرومس لیا تھا؟ امو نے اپنے بیٹوں سے جو ہے کیا پرومس لیا تھا؟ یہ آپ کا جواب ہے امو نے اپنے بیٹوں سے جو ہے موت کے بعد جو ہے کندھا دینے کا جو ہے پرومس لیا تھا، ہے نا. چلیے آپ کا سوال نواں کہہ رہا ہے کہ آئیے یہ آپ کا سوال لانگ کوشچن ہے. یہ آپ کا سوال نو کہہ رہا ہے کہ امو کے ایک بیٹے حمید کے بارے میں بتائیے. دیکھیے کیا بولا ہے، ایک بیٹے، اس سے پہلے جو تین بیٹا تھا اس کے بارے میں نہیں بولا ہے، جو چھوٹا بیٹا اس کا ہے امو کے ایک بیٹے حمید کے بارے میں جو ہے بتائیے انہوں نے کیا کیا کیے تھے. آئے دیکھتے ہیں. جواب آپ کا ہے کہ امو کے جو ہے چار بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ چار بیٹے تھے، ہے نا. حمید جو ہے سب سے چھوٹا بیٹا تھا. حمید کی طبیعت یعنی من جو ہے پڑھائی میں نہیں لگتی تھی. اس سے پہلے ہم جو ہے فل ایکسپلینیشن میں بتا چکے تھے. حامد کے جو من میں پڑھائی میں جو ہے بالکل ہی نہیں لگتی تھی، ہے نا. سارا دن ہے نا کیا، سارا دن جو ہے نکمے لڑکوں کے ساتھ میں جو ہے کیا کرتے تھے مسٹر، ہے نا کیا، مسٹر گشتی کرتا رہتا تھا نا، گھومتا رہتا تھا، ہے نا. کبھی طلبا آئے گا، کبھی طلبا یونین کا جھنڈا تھامے سڑکوں پر گھوم رہا ہے، تو کبھی جو ہے کسی سیاسی پارٹی کے جلوس میں جو ہے نعرہ لگا رہا ہے نا. ایک دن معلوم ہوا کہ وہ کسی سیاسی پارٹی کا جو ہے نا، پارٹی کا ہے نا رکن بن گیا. کیا بن گیا؟ حصہ بن گیا. امتحان کے دن جو ہے نا، امتحان کے دن جو ہے قریب آئے تو اس کے والد کیا، ان کے جو ہے نا والد جو ہے ابو پڑھنے کو کہتے تو جواب دیتا کہ مجھے امتحان نہیں دینا ہے نا. وہ الیکشن کے لیے رک کرتا ہے. اس طرح وہ فضول کاموں میں جو ہے پڑھ کر تعلیم سے جو ہے بالکل کیا ہو گیا، محروم رہ کر جاہل رہ گیا. جو کچھ ہی دن میں جو ہے نا سیاست میں جو ہے رہتے رہتے کیا کیا انہوں نے کچھ ہی دن میں جو ہے منسٹر کا عہدہ جو ہے فائز ہوا نا، اس کو ہے نا منسٹر کا عہدہ جو اس کو فائز ہوا ہے نا. چلیے اگر آپ کو پوچھے یعنی حمید جو ہے سب سے چھوٹا بیٹا یہ کون تھے، تو بولے گا ہندوستان میں یہ کیا تھے، منسٹر تھے. کیا تھے؟ منسٹر تھے نا. دیکھیے ان کا پڑھائی میں جو ہے بالکل طبیعت ہے نا، کیا بولا، طبیعت پڑھائی میں نہیں لگتی تھی. سارا دن جو ہے نکمے لڑکوں کے ساتھ ہے نا گھومتے رہتے تھے نا، مسٹر گشتی کرتا رہتا تھا. کبھی طلبا یونین کا جو ہے جھنڈا تھامے سڑکوں پر گھوم رہا تھا، تو کبھی کسی سیاسی پارٹی کے جلوس میں جو ہے نعرہ لگا رہا تھا. ایک دن معلوم ہوا کہ وہ کسی سیاسی پارٹی کا جو ہے رک نہ کر لیا، رخ جو ہے مور لیا ہے نا. امتحان کے دن قریب آئے تو ان کے والد جو ہے پڑھنے کو کہتے ہے نا، پڑھنے کو جو ہے کہتے تو جواب دا کہ مجھے نہیں امتحان دینا ہے. وہ الیکشن کے لیے جو ہے کیا کیا روک کرتا ہے. اس طرح وہ فضول کاموں میں جو ہے پڑھ کر تعلیم سے کیا ہو گئے، بالکل محروم ہے نا رہ کر جاہل رہ گیا ہے نا. چلیے آپ کا سوال آپ کا 10واں کہہ رہا ہے کہ سوال 10واں آپ کا ہے کہ امو کے جو ہے چار بیٹوں کے نام اور ان کا کام بتائیے. چلیے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے. امو کے جو ہے چار بیٹوں کے نام کیا کیا تھا،
सबसे जो उसका पहला बेटा था खुर्शीद था, उनके बाद दूसरा आपका रशीद है, फिर जमशेद है, फिर उनके बाद हामिद है ना। इनमें खुर्शीद जो है शिकागो में डॉक्टर थे, है ना। रशीद भी क्या थे, अमेरिका में इंजीनियर थे, और जमशेद भी जो है न्यूयॉर्क में इंजीनियर थे। और सबसे छोटा बेटा घर ही पर रहता था, वो अपने माँ बाप के साथ रहता था, पढ़ाई में उसका जो है दिल नहीं लगता था, इसलिए सियासत का जो है रुख किया और कुछ दिनों के लिए मरकजी हुकूमत में जो है वजीर बन गया, यानी मिनिस्टर बन गया, है ना। चलिए, ये थे उनके चारों बेटे का, है ना, काम थे। इसको अच्छे से याद कर लीजिए और समझ भी जाइए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल 11 कह रहा है कि अम्मू के जो है बेटों ने उनकी मौत के वक्त जो है साथ क्यों नहीं दिया। क्या कर रहा है, अम्मू के जो है बेटों ने, है ना, हाँ, उनके मौत के बाद जो है साथ क्यों नहीं दिया, है ना, क्यों नहीं दिया। या आपका जवाब है कि अम्मू जो है ना, क्या है, अम्मू जो है ना, बसरे अलालत, क्या बिसरे, बिसरे यानी अलालत पर, इलालत पर जो है पड़ी हुई थी। क्या होता है, बीमारी होता है। अम्मू जो है बिसरे इलालत पर जो है पड़ी हुई थी। कैंसर उनके सारा जो है जिस्म में क्या हुआ, फैल गया था। क्या, कैंसर की बीमारी जो है ना पूरे जिस्म में क्या फैल गया था। गोया कि अम्मू जो है मौत के आगोश में, है ना, यानी गोद में है, हिंदुस्तान में जो है मुकीम एक बेटे को छोड़कर जो है अमेरिका में बसे। उसके मुकाबले उसके बकाया तीनों जो है बेटे अपने अहलो अयाल यानी बाल बच्चे के जो है साथ, है ना, अम्मू की, है ना, उस ख्वाहिश पूरी करने के लिए आए थे कि जनाजे को जो है कंधे देंगे। मगर माँ की ख्वाहिश ये, है ना, पूरी नहीं हुई। कंधे देने वाला उसके आखिरी बेटा हिंदुस्तान में ही रहते हुए भी सियासी मसरूफियत की वजह से जो है नहीं आ सका। बाकी जो है ना, बाकी बेटे भी महदूद वक्त लेकर आए थे। माँ की मौत पर जो है ताखिर देखकर वापस लौट गए, है ना, वापस क्या हो गए, लौट गए। इस तरह माँ की जो है मौत में किसी बेटे ने क्या साथ नहीं दिया, है ना, साथ नहीं दिया। इससे पहले हम जो है इस कहानी को पढ़ चुके थे, समझ चुके थे, है ना। चलिए यहाँ जो है खुल करके लिखा हुआ है, अब यहाँ से समझ सकते हैं। आपका जो है आपका सवाल आखिरी है, 16 सवाल कह रहा है कि अम्मू, है ना, अम्मू दुखी क्यों थी, है ना, अम्मू जो है दुखी क्यों थी। जवाब है कि अम्मू जो है बीमार, क्या बीमार रहती थी। क्या, अम्मू जो है बीमार रहती थी। वह उलझी सांसों के जो है ना, दर्द को थामे दिल ही, क्या, दिल ही दिल में सोच रही थी। क्या, क्या बोले हैं, है ना, अम्मू जो है बीमार रहती थी, वो उलझी सांसों के दौर, है ना, क्या, दर्द को थामे दिल ही दिल में सोच रही थी, है ना। ये आपका क्या है, सुनसान घर यानी खाली कमरे, है ना, सुनसान, क्या, सुनसान घर, खाली कमरे, ये ना, ये आपका है सोना, सूना आंगन, क्या, सूना आंगन, अंधेरे कमरे में जो है अकेली लेटी, है ना, दर्द से जो है तड़प रही थी। बदन का कोई हिस्सा काबू में ना था। दवा उसे भी फायदा नहीं पहुंच रहा था। कांपते हाथों से पानी की बोतलें जो है उठाने की कोशिश करती तो सारा बिस्तर जो है भीग जाता। अम्मू ने, है ना, बेटों की तालीम के लिए, है ना, सारी जायदाद फरोख्त कर दी थी। देखिए भैया, है ना, अच्छी डिग्री हाँ या हासिल करते हुए बेटे, है ना, बेटे गैर मुमालिक चले गए। अम्मू ने, अम्मू उन्हें बातों से दुखी थी। देखिए इनको अपने पूरे जायदाद को जिनके पीछे जो है लुटा दिए, खर्च कर दिए, फरोख्त कर दिए उनको पढ़ाने के चक्कर में, है ना। देखिए फिर क्या हुआ आखिर में, देखो इनको जो है चारों बेटे जो है इनको बिल्कुल ही साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि बेचारी अकेली घर में रही पड़ी हुई। यहाँ तक कि उनके जो है बदन का, है ना, बदन का जो है कोई भी हिस्सा काबू में ना था। अगर क्या दवा पीने के लिए पानी की बोतल जो है उठाते तो हाँ कांपने की वजह से जो है ना गिर जाते थे, जो सारा बिस्तर जो है क्या भीग जाते थे उसका, है ना। देखिए इसका ये हाल था, इसलिए जो है अम्मू क्या दुखी में थी, है ना। इसलिए अम्मू क्या, अम्मू जो है दुखी क्यों थी। देखिए आप पढ़ करके जो है इसको समझ सकते हैं क्या थी, है ना। ये कहानी जो बहुत ही अफसाना जो है बहुत ही दुख वाली है ना। इसको पढ़ करके जो आप समझ सकते हैं क्या क्या है अपने बेटों के साथ क्या क्या इन्होंने क्या है। चलिए ये थे आपका जो है आखिरी सवाल, है ना, इसको हम पढ़ चुके हैं। यह आपका है आखिर में कह रहा है बिहार मैट्रिक जो है इंटर उर्दू के लिए जो है आज ही MS यूट्यूब चैनल पर जुड़े, है ना, और मुकम्मल नोट्स के लिए जो है आज ही नीचे दिए गए नंबर पर जो है राब्ता करें, यानी इस नंबर पर जो है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आपको PDF चाहिए तो आपको PDF जो है ना प्रोवाइड कर दिया जाएगा, है ना, फ्री में, है ना। चलिए अगर वीडियोस पर पहली बार आए हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाले आइकन को जो है प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस जो है आप तक सबसे
پہلے پہنچ سکے، ہے نا؟ چلیے پھر اس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔